Very good morning to everyone. Welcome to your class 3 of the chapter Electrostatics. And the topic for today that we will be doing is Coulomb's law. So yeah, let's just get started. Now, Coulomb's law, what does it tell us? So Coulomb's law tells me what is the force, or maybe we should say electrostatic force. Okay. So the Coulomb's law tells me what is the electrostatic force exerted by one charge on another. Okay, so that is what the Coulomb's law tells. So suppose I have a charge Q1 over here, and suppose I have a charge Q2 over here, and I want to find what will be the force experienced by this Q2 charge because of the Q1 charge. Okay, that's what we want to find. One more important thing, that these two charges are separated by a distance r. Fine. Now, the Coulomb's law tells us, what does this Coulomb's law tells us? The Coulomb's law tells us that this force, which is experienced by Q2 due to the charge Q1, okay, or the Q1 due to the Q2. Every action is an equal and opposite reaction. तो अगर Q1 charge force लगाएगा Q2 पर, तो Q2 charge भी equal and opposite force लगाएगा Q1 पर. That is we all know. So that means this force जो ये एक दूसरे पर exert कर रहे हैं, which are equal in magnitude, ठीक है? ये जो force Q1 apply कर रहा है Q2 पर और Q2 भी apply कर रहा है Q1 पर, क्योंकि they are action and reaction forces, right? And this force is what? This is the electrostatic force. This force is proportional to, the Coulomb's law tells us that this force is proportional to the product of the two charges. Okay? So the Coulomb's law ने हमें क्या बोला? That it is proportional to, this force is proportional to the product of the two charges and it is inversely proportional to 1 upon r square. Fine? तो ये हमें Coulomb's law बताता है that the force is proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to R square. Fine? यहाँ तक clear है? Now, अब तक हमने सीखा था कि proportionality के sign को जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह हम एक constant लगाते हैं, right? We put a constant over here. So when I will merge these two, जब मैं इन दोनों को merge करूंगी, so my equation for the force I will change this proportionality sign to the equality sign and I will put what? I will put a constant. Let us say I put a constant k. Okay, I put a constant k and then I have q1, q2 and I have in denominator r square. So this is what? This is the Coulomb's law. The Coulomb's law tells me what is the force experienced by q1 charge because of q2. Okay. And what is the force experienced by the Q2 charge because of Q1? Got it? Now, how will we know what is the direction of the force? Okay, so now coming to the next point, the direction of force. In which direction the force acts? So, the force acts along the line joining the two charges. Okay, the force will act along the line joining the two charges, but अभी भी डायरेक्शन हमें क्लियर तो नहीं हुई कि हो सकता है कि टुवर्ड्स द चार्ज हो या फिर अवे फ्रॉम द चार्ज हो, राइट? तो उसके लिए what we will see what is the polarity of the charge, right? Now suppose I have a q1 over here and I have a q2 over here. I join the two charges with a line. Let me draw it with another color. So let's take yellow. Okay, so I have q1 and q2 and I have joined them with a line. Fine. Now what will happen if q1 is positive and q2 is also positive, and we know what? Like charges repel each other, right? Like charges repel each other. So what will be the direction of force
because of Q1 on Q2. It will be away, right? Since the two charges are positive, both the charges are positive, they will try to move away. They will try to repel each other. Like charges repel each other. So if they will try to repel each other, in which direction will Q2 try to move? It will try to move away from the Q1 charge because both are positive. So that means the direction of force on Q2 will be this, right? This will be the force on Q2 because of Q1. This is how we write the force, right? We write कि किस पर लग रहा है and the next thing is किसकी वजह से लग रहा है. Force on Q2 due to Q1, right? So this is my force. अब similarly, what will be the direction of the force on Q1 due to Q2? Q2 की वजह से Q1 पे कितना force लग रहा है? How will we know that? अब मुझे पता है again दोनों पॉजिटिव है तो Q1 क्या चाहेगा? Q1 भी तो दूर जाना चाहेगा. अगर Q2 यहाँ खड़ा है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दोनों दूर भागना चाह रहे हैं ना. तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? दूर ले जाने की डायरेक्शन में होगा. तो दैट मीन्स द फोर्स on Q1 due to Q2 will be in this direction. Fine. But we know that Newton's third law says that every action has an equal and opposite reaction. तो क्योंकि अगर मैं इस वाले फोर्स को, अगर मैं ये वाला जो फोर्स है इसको मैं अपना एक्शन फोर्स बोलूं तो ये वाला फोर्स मेरा क्या हो जाएगा? द रिएक्शन फोर्स, राइट? तो ये अगर मेरा एक्शन फोर्स है तो ये रिएक्शन फोर्स है एंड बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ओके, अगर मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला में देखूं तो अगर मैं क्या करूंगी, दोनों में फोर्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट आ रहा है, राइट? तो अगर मैं Q1 की वजह से Q2 पे देखूं या Q2 की वजह से Q1 पे देखूं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? सिर्फ क्या चेंज हो रही है? द चेंज इज इन द डायरेक्शन. द चेंज इज इन द डायरेक्शन. So that means the force on Q1 due to Q2 का magnitude is same as force on Q2 due to Q1. Both have same magnitude, but they have opposite direction. इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, बट क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है. फाइन, द मैग्नीट्यूड इज सेम. नाउ लेट्स राइट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कूलम्स लॉ. ठीक है, अभी तो हमने समझ लिया कि चलो कूलम्स लॉ होता क्या है. वी गॉट अ अंडरस्टैंडिंग, बट पेपर में आ गया तो लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे? दैट इज व्हाट वी विल सी टुडे. नाउ सो वी विल राइट दैट, अब मुझे भी अच्छे से याद नहीं है. Forces between two charges Q1 and Q2 which are separated by a distance r in air is directly proportional to what? It is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to what? It is inversely proportional to the square of distance between them. Understood? I hope it is understood. So we have a Q1 charge, we have a Q2 charge, they are separated by r distance. Then what will be the force between Q1 and Q2? It will be K Q1
Q2 by R square. That is my expression for the Coulomb's force, right? That is my expression for the electrostatic force. आप electrostatic force को Coulomb's force भी बोलते हो, right? Okay. So now this is the expression for your Coulomb's law. Let us move on to what is K, right? कि K क्या है? इस K कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? अगर न्यूमेरिकल में आपको दे दूं कि Q1 1 कूलम है, Q2 2 कूलम है, R जो है वो 1 मीटर है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए K की वैल्यू चाहिए, राइट? तो K की वैल्यू क्या होती है? जो K है उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 SI यूनिट्स, राइट? नाउ व्हाट इज दिस SI यूनिट? मैंने यहाँ पे SI यूनिट लिख दिया, बट हमें इसकी SI यूनिट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. आप हर क्वांटिटी की SI यूनिट याद नहीं रख सकते, है ना? आपको फॉर्मूलाज तो डेफिनेटली याद रखने हैं. अब साथ साथ SI यूनिट्स याद करने बैठोगे इतनी सारी की सारी तो नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. इतनी सारी यूनिट्स आप पढ़ोगे अभी अभी तो जस्ट आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है. तो इसकी SI यूनिट निकालने के लिए व्हाट वी विल डू वन थिंग. वी नो दैट फोर्स की यूनिट क्या होती है? 1 न्यूटन. सो इन LHS वी हैव 1 न्यूटन, करेक्ट? K की यूनिट तो हमें निकालनी है. सो लेट्स कीप K एज K. What are the SI unit of charge? Charge की SI unit क्या है? What is the SI unit of charge? So charge is coulomb, right? So let us say 1 coulomb into 1 coulomb, correct? Divided by, we have R. R is the distance. What is the SI unit for the distance? It is meter. So we have 1 meter and we have square. Cool. Now what we will do? Now we have to find the unit of the K. How will we find the unit of the K? हम लोग इन सब चीजों को, जो हमारे पास यहाँ पे चीजें बैठी हैं, इनको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, सिंपल. तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के? अभी यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है? हम लोगों ने 1 1 1 इसलिए रख दिया ताकि हम यूनिट निकाल सके. वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. ओके. सो के की यूनिट विल बी व्हाट? के की यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर. किसकी बात कर रही हूँ मैं? यूनिट की बात कर रही हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रही. यहाँ पे 1 नहीं लिखा है मैंने, यूनिट लिखी है, ठीक है? यूनिट ऑफ के इज व्हाट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब समझदार बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं. सिंप्लीफाई कर दिया हमने, यूनिट निकाल दी के की. तो अगर मेरे पास SI यूनिट आ गई है के की, if I have the SI unit of K, can I write that the value of K is what? The value of K is 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square Coulomb raised to power minus 2. I can write this. Yes, I can write this. That this K, the proportionality constant over here, has the value 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per Coulomb square. That is the proportionality constant. And this is what you have to remember. You will use this in so many formulas that ये आपको अपने आप रट जाएगा. ठीक है? मैं 5 साल हो गए मुझे 12th करे हुए. I will still remember this जब मेरे को 15-20 साल हो जाएंगे 12th करे हुए. ओके. So this is so important value. You will use it so frequently that you will remember. और याद करना भी कितना आसान है. We have 9 into 10 raised to power 9. Easy to remember. And this is very important. This value is very important. एग्जाम्स में नहीं देते हैं वैल्यू. आप कहो कि आपको एग्जाम्स में वैल्यू गिवन होगी. No, they will not give you the value. The force का expression याद रखना, very 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 important. The most basic formula and the most basic expression is this. Okay, and you have to remember this by heart. Easy to remember. K Q1 Q2 by R square and K की value is 9 into 10 raised per 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. मेरे साथ साथ ही याद हो गया होगा जब मैंने बताया, तो हाँ भी याद हो गया. कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी. फाइन. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं? वी राइट एन एक्सप्रेशन फॉर के. हम लोग अब यहाँ पे ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? लेट्स टॉक अबाउट. सो अब हम लोग क्या करते हैं? वी से दैट के की जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब आप बोलोगे मैम पता नहीं क्या कर रही है, बट कुछ भी लिखे जा रही है ना?
बस लिखती जा रही है, तो याद करते रहो बैठ के इसको। वेरी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है, वेरी इजी टू रिमेम्बर। तो के जो है, जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, उसका जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। ओके, तो मैं नोट्स में इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं लिखना चाहती, कई बार आप बोलते बोलते में कुछ गलत बोल देते हो, तो इसलिए मैं गलत नहीं लिखना चाहती कुछ। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है ना, ये जो है बेसिकली ये आपके एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये आपके एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। इसको आप समझ सकते हो कि सपोज मेरे चार्जेस जो हैं वो एयर में रखे, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स, उनके बीच में कुछ फोर्स है। अब अगर मैं उन चार्जेस को हटा के वाटर में रख, तो क्या फोर्स सेम होगा उनके बीच में? मीडियम का कुछ रोल नहीं होगा, वाटर वहां पे वाटर के अंदर पड़े हैं, तो कुछ मीडियम का रोल भी तो होगा जिस मीडियम में मैंने चार्जेस को रखा हुआ है। अगर मैं वाटर से उठा के ऑयल में रख दूं, तो ऑयल में रखे हुए हैं तो फोर्स पे कुछ तो असर होगा, फोर्स बढ़ेगा कम होगा, कुछ तो होगा भाई। तो जो ये एब्सोल्यूट, जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखा है, ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम जिसके अंदर आपने चार्जेस को रखा है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ओके, सो लेट मी टेक दिस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इट इज व्हाट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में आपके चार्जेस रखे हैं, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम जिसमें आपके चार्जेस रखे हैं। अब मैं इतना ही लिख सकती हिंदी में, जिसमें आपके चार्जेस लिखे, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम जिसके अंदर आपके चार्जेस रखे हैं, और उस मीडियम का क्योंकि कुछ ना कुछ रोल होगा आपका, है ना कुछ तो डेफिनेटली जिस मीडियम में आपने रखे हैं उससे कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा आपके फोर्सेस पे। और ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसको मैंने फॉर्मूला में इंक्लूड ही इसको इसलिए करा है ताकि मैं देख सकूं कि फोर्स पे कितना असर हो रहा है मीडियम का। अब सबसे बेसिक, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, आप हमेशा क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो वैक्यूम में, ठीक है। जब भी आप कुछ भी पढ़ोगे, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले एक आइडियल कंडीशन लेते हो। कि हम लोग सीधा ये नहीं करते कि क्या बोलते हैं कि कोई वाटर में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि वाटर में देख लेते हैं दो चार्जेस पे कितना फोर्स पड़ रहा है, नहीं। जब भी आप कोई चीज स्टडी करना स्टार्ट करते हो, आप सबसे बेसिक कंडीशन, सबसे आइडियल कंडीशंस में करते हो। जब गैसेस पढ़ोगे तो आइडियल गैसेस पढ़ोगे, कंडीशंस पढ़ते हो तो आइडियल कंडीशंस पढ़ते हो। और आइडियल कंडीशन में एक कंडीशन है वैक्यूम, राइट। तो हम लोग पहले जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक ऐसी कंडीशन लेते हैं जिसको पढ़ना सबसे आसान हो। वैक्यूम में मीडियम का कोई रोल नहीं है ना, वैक्यूम में देयर इज नो रोल ऑफ द मीडियम। तो अगर वैक्यूम में कोई मीडियम का रोल नहीं है तो वहां पर पढ़ना सबसे आसान है चीजों को, है ना। तो हमने स्टार्ट ही वैक्यूम कंडीशन से करा कि हमने दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रख दिया, और क्योंकि हमने दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हमने क्या करा, हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को कैलकुलेट करना था एक मीडियम के, फाइन। वो मीडियम हमने वैक्यूम ले लिया, हमने वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कैलकुलेट कर लिया, और उसको हमने बोल दिया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सिंपल, अंडरस्टूड। फ्री स्पेस क्या है, जहां पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, खाली जगह है मतलब वैक्यूम, ठीक है। बहुत बारी आप लोग इस फ्री स्पेस को एयर भी बोल देते हो, क्योंकि एयर होना ना होना इट्स ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। क्योंकि एयर के अंदर आपका मॉलिक्यूल डेंसिटी इतना कम होता है कि उससे वैक्यूम कंडीशंस ही मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादा इसमें ये नहीं बोलते कि वैक्यूम में 0.1 का फर्क है परमिटिविटी में, एयर में 0.1 का फर्क है, नहीं।
लेट्स से कि वैक्यूम ही एयर है जब हम लोग एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फ्री स्पेस का मतलब एयर भी हो सकता है। हमारी लैंग्वेज, हम लोग अभी तो 12th में है, जब और बड़े होंगे तो फिर एयर और फ्री स्पेस का फर्क करेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और इसको हम लोग वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दोनों चीजें बोल सकते हैं, हम लोग फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं, एयर भी बोल सकते हैं, वैक्यूम भी बोल सकते हैं। जनरली बुक्स में फ्री स्पेस लिखा होता है तो यहाँ पे फ्री स्पेस लिखा हुआ है, फाइन। So I hope you've understood what is electrical permittivity is a property of the medium. Simple, easy to understand. Now, अब जो ये एप्सिलॉन नॉट है, जब हमने ये कैलकुलेट करा तो इसकी वैल्यू क्या थी, राइट। तो ये जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू है, इट वाज, ओके, so have I written the value? Yeah, so value of epsilon naught is equal to, now this is something hard, तभी मुझे भी नहीं याद है, बट हाँ, 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 कूलम स्क्वायर, फाइन। अब इसकी यूनिट कैसे याद करें, इसकी वैल्यू कैसे याद करें, हर चीज तो याद कर ही नहीं सकते, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। व्हाट वी विल डू, हमें वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट चाहिए, के की वैल्यू हमारे पास है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू विल सिंपली बी 4πk। आई होप यहाँ से आप देख रहे हो, है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, आई एम सो सॉरी, नो नो, दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4πk, सो एप्सिलॉन नॉट विल बी व्हाट, 1 अपॉन 4πk। नाम से भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, वी हैव एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πk। नाउ व्हाट यू विल डू, this is for your job, not my job. I'm not doing calculations, I'm giving you the values, you do the calculations, verify the result. आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 और 3.14, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁻⁹ आई एम नॉट राइटिंग, आई एम टेलिंग यू, ओके, कैसे करना है, समझो, आदत डालो खुद करने की। 1/4 पाई के है, 4 की वैल्यू 4 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। वैल्यूज को डालो और फाइंड करो कि क्या तुम्हारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यही आ रही है, ठीक है। चेक बाय योरसेल्फ, दिस इज योर फर्स्ट टास्क, दैट यू हैव टू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू, okay, so we have done this, now we have a small job to do, a small job to do, जिसमें कई बारी एग्जाम पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वेरी सिंपल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग छोड़ देते हैं इसको। बट लेट्स मूव ऑन टू, लेट मी राइट इट विद अनदर कलर पेन, इतने कलर्स हैं, रंग बिरंगा काम करते हैं, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K. Let us first find what is the dimensional formula of K. Then we will find what is the dimensional formula of epsilon. Okay. So we have to do two things and then we will stop. Okay. So this is the last task. We will not be doing dielectric constant today. अभी हम लोग इतना करते हैं इस क्लास में. In the next class, we will be doing the dielectric constant. Okay. So अभी we will not do dielectric constant. Let's just keep it aside. And we will stop at finding the dimensional formula of the K and dimensional formula of epsilon naught. In the next class, we'll start with the dielectric constant. Okay. Now, the dimensional formula of K. Okay. So मुझे K के dimensional formulas चाहिए. Formula क्या है? We have F, force है हमारे पास, is equal to K Q1 Q2 by R square. This is the formula. यहाँ से मैं K की वैल्यू निकाल सकती हूँ. What will be K? K will be F R square divided by K Q1 Q. ठीक है. Now I want to find the dimensional formula of K. Square bracket से लिखते हैं dimensions को.
चलो, what will be the dimensional formula of k? So dimensional formula of k will be f. What is the dimensions of f? F is mass into acceleration. So we have m for the mass. For acceleration, we have L t minus 2. Easy. Mass is m. Acceleration is what? Distance upon time square. So distance is L. डिविजन में है टाइम स्क्वायर, तो t की पावर क्या हो गई? -2. ओके, चलो, r स्क्वायर. r स्क्वायर इज डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस स्क्वायर l स्क्वायर. डिस्टेंस का डायमेंशन इज l डिवाइडेड बाय, ओ डिड आई राइट k अगेन? आई एम सो सॉरी. यहाँ पे k नहीं आएगा क्योंकि k का तो वैल्यू ही निकाल रहे हैं ना, k के डायमेंशन निकाल रहे हैं. ओके, ओके. q1 q2. q is charge. Okay, what is the relation between charge एंड चार्ज? मुझे पता है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है. क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? करंट एंड टाइम. ठीक है, करंट को हम लोग लिखते हैं ए से, दैट इज एम्पियर. एंड टाइम को हम लोग लिखते हैं किससे? टी से. ठीक है, तो मुझे पता है कि जो करंट होता है, जो करंट है वो क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. ऐसे ही लिखते हैं. तो अगर मैं टी को यहाँ ले जाऊंगी और डायमेंशनली अगर मैं लिखूं, तो चार्ज के डायमेंशन क्या है? 80. चार्ज के डायमेंशन आर 80. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80 स्क्वायर, क्योंकि दो बारी आया है ना चार्ज, एक बारी नहीं आया, दो बारी आया. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, ओके देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे. एम तो खाली एक ही एम है, एम तो हो गया सॉल्व. एल देखते हैं. सो वी हैव एल की पावर 1 एंड वी हैव एल की पावर 2. सो पावर्स एड अप, राइट? अगर प्रोडक्ट में है तो powers will add up. So L raised to power 1 into L raised to power 2 will give me L3, L cube, right? L raised to power 3. And we have T. T raised to power -2 divided by T square. तो इस T square को जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे, it will become T raised to power -2. And T raised to power -2 and T raised to power -2 will add up to give me T raised to power -4. Easy? A. ए है हमारे पास डिनोमिनेटर में जिसका स्क्वायर है, तो वी विल गेट ए. इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेज टू पावर -2. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के अकॉर्डिंग टू मी. लेट्स चेक आंसर क्या है. ठीक है, लेट मी चेक. पता चले मैंने कोई गलती कर दी हो. सो लेट अस सी, द आंसर इज ml³ t raised to power -4 a raised to power -2. Very good. That is the correct answer. Okay, so this is my answer. These are my dimensions of the k. Okay, this is my dimensional formula for the k. Easy to understand? Now, dimensional formula for epsilon naught. Very, very, very easy. Once you know the dimensional formula of k, क्या आप एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकाल सकते हो? अगेन वी विल यूज व्हाट फॉर्मूला? k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकती थी? एप्सिलॉन नॉट क्या है? 1/4 पाई k. अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो मुझे k का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए. 4 पाई की कुछ डायमेंशन होती है. 10 पाई आ गई डायमेंशन, 4 की तो पक्का ही नहीं है ना? पाई की कुछ डायमेंशन होती है, मुझे तो नहीं याद, नहीं होती है ना? नहीं होती, नहीं होती. चलो, अगर पाई की डायमेंशन नहीं होती, 4 की डायमेंशन नहीं होती, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 1/k की डायमेंशंस. ठीक है, तो मतलब कि अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस चाहिए तो मैं क्या करूंगी? के की डायमेंशंस का रेसिप्रोकल कर दूंगी, है ना? के की डायमेंशंस का रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि 1/k की डायमेंशंस क्या निकाली थी हमने? ml³ t raised to power -4. Oh, I'm so sorry.
क्या लेगा ये नीचे जाने का? I'm so sorry. Just a second. Okay, let's write it over here, right? So, dimensions of epsilon naught is equal to dimensions of 1 upon k. यहीं तक करा था अब तक हमने 1 upon dimensions of k. क्या निकाला था? पीछे देखते हैं. ये निकाला था ml cube t raised to power minus 4 a raised to power minus 2. याद हो गया? नहीं हुआ. 1 3 minus 4 minus 2. m l cube t minus 4 a minus 2. यही निकाला था ना? एम एल क्यू टी रेस पर माइनस 4 ए रेस पर माइनस 2. यही निकाला. ठीक है. तो अब इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी ना सारी. तो वी विल हैव एम रेस टू पावर माइनस 1 एल रेस टू पावर माइनस 3 टी रेस टू पावर 4 ए रेस टू पावर 2. चेक कर लें परी, नोट से चेक कर लें. So the dimensions are m minus 1, l raised to power minus 3, t raised to power 4, a square. Amazing. ठीक है, that is the dimensions of our k. Dimensional formula of epsilon naught. ठीक है. So that is correct. अब हमने what have we learned till now? Dimensional formulas for k, dimensional formulas for epsilon naught. We have found the values of k and we have found the values of epsilon. Okay. So, as promised, we'll end the class over here, and in the next class, we will be starting with the dielectric constant. Okay. So, a quick revision of what we did in this class. So, first we discussed what is the force exerted by one charge on the other, which is given by the Coulomb's law. Coulomb's law tells me that F is equal to K Q1 Q2 by R square. Amazing. इसके अंदर k क्या था मेरे पास? कांस्टेंट था प्रोपोर्शनैलिटी का. k की वैल्यू क्या थी? 9 into 10 raised to power 9. And what were the units? The units were Newton meter square per coulomb square. Got it? Easy to understand. This was easy. फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी व्हाट आर द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज. व्हाट आर द पोलैरिटीज ऑफ द चार्ज? अगर दोनों पॉजिटिव है तो दूर दूर भागेंगे. अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पास पास आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं. नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, तो अगेन द फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दे विल ट्राई टू मूव अवे. ठीक है, यहां तक आ गया समझ? Next, what we did? Next, we found the value of epsilon naught. Epsilon naught क्या है? It is the absolute electrical permittivity of free space. Free space क्या होती है? Free space is we have air or we have vacuum. ठीक है, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? We use the free space word. Epsilon naught क्या है? Epsilon is मतलब absolute electrical permittivity of free space is epsilon naught. बट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, और वो मीडियम पे क्या डिपेंडेंस है फोर्स की वो हमें बताता है. फाइन. फिर उसके बाद हमने क्या करा? नेक्स्ट वी फाउंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, वेरीफाई करोगे, और आंसर आएगा आपका 8.85 into 10 raised to power minus 12 Newton minus raised to power minus 1 meter raised to power minus 2 Coulomb square. That will be your value of the epsilon naught. After which what we did, we found the what is the dimensional formula of k and what is the dimensional formula of epsilon naught. और हमने ये चीज नोटिस करी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला k का है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो दैट विल गिव मी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहाँ तक क्लियर है? At last, okay, so then we found the dimensional formula of epsilon naught, and this is the end of your class. We will meet in the next class, and what we will do, we will see what is dielectric constant and how is the force dependent on different mediums. Okay, what will happen on the force? अगर मैं charges को कहाँ पे रख दूंगी? वाटर में रख दूंगी, किसी और मीडियम में रख दूंगी, तो उस मीडियम की क्या डिपेंडेंस है फोर्स पर, वो हम लोग देखेंगे in the next class. So I hope you liked my video. I hope you understand what I wanted to explain, and thank you so much. And please do like and share my video if you like it, and do comment what you feel. If you have any doubts, feel free to contact me, and do subscribe my channel. Thank you so much.